Yes, I ma'am. hope the screen is visible. Yes, ma'am. You can start, please. Yeah. So good afternoon, everybody. And in today's session, I'm going to cover two topics. The first one is research matrices, and the other one is open access. These two sessions are really very important for all of you to know the research component. Let's start with research matrices. Friends, as you know, UGC care list of journals, right? Recently, it is scrapped by UGC, but this was a platform to recommend the journals, okay? And academicians and researchers were expected to publish their research in these journals only. That is UGC care. See, UGC care includes Group 1 and Group 2 list of journals. Group 1 included the journals which are recommended by the experts of various domains nominated by UGC in their field, and Group 2 included the journals which were indexed in Web of Science, Scopus, right? All these citation indexing databases. And it was actually searchable, browsable, and you could get actually the whole information about that particular journal. And these journals were the journals where uh, which are recommended by the UGC, right, to publish our research. This group 2 journals Sorry, ma'am, for interruption. that included. Ma'am, hello, ma'am. हाँ, hello. Sorry for interruption. Sorry, बोलिए. Ma'am, few months ago, I think so, if I am right, UDC has disassociated with this Sir, UGC care list of journals. I have told you in the first sentence only that this is scrapped by UGC few days before, but all these points I'm going to discuss in regard to, in context to research matrices. So initial slides will be there. Only this is, I think, the last slide. Then I will directly Okay, go to the citation indexing databases. I know it is scrapped by okay, UGC. Yeah. okay. So group 2 list was including the journals which are indexed by Web of Science and Scopus, right? See, Web of Science is providing you three services, that is Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index, and Social Sciences Citation Index. Now, coming to research matrices, it is rightly said by William Thomson and Lord Kelvin that if you can measure that of which you speak and can express it by a number, you know something of your subject, but if you cannot measure it, your knowledge is meager and unsatisfactory. See, the quality of research, when we talk about the quality of research, it should be measured in a number. Okay? Then only we can say that it is satisfactory. So, how to measure the quality of research in a number? That parameters we are going to see in this session. Okay. Now, what is research impact? Research impact is the effect research has beyond academia when the knowledge generated by our research contributes to benefits and influences society, culture, our environment, and the economy, it is said to have research impact. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है. जब हमारे रिसर्च से जो भी नॉलेज जनरेट होता है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बेनिफिट करना चाहिए एंड इन्फ्लुएंस करना चाहिए. किसे? तो हमारी सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी. Then we can say that our research has the research impact. Now, how this research impact is measured? It is measured in terms of citation impact. There are n number of impact factor services. Then journal impact, book impact, individual research impact, and measurement of estimates. These are all the terms in which we can actually measure the research impact. Now we will see one by one all these things in detail.
See, there are some citation measuring databases. We must know which are they. See, the first four are very important for all of us. That is Scopus, Web of Science, Google Scholar and Indian Citation Index. ये चार हमारे लिए बहुत important है और हमें इसको जानना बहुत important होता है. Now, we will see one by one these four databases. See, Scopus, as you know, Scopus is the service which is given by Elsevier, okay, and okay, you can see this is the actually the Scopus page. From here you will get the content coverage guide. Then Scopus source list is given, book title list is also given, and discontinued sources are also mentioned over here. And here one more thing is that is author search. You can see the you can search by author's name over here. And recent coverage of Scopus is indexing more than 25,000 titles, out of which 23,000 more than 23,000 are peer-reviewed journals, including open access journals, that is 5,500. It is indexing 294 trade publications, 852 book series, and over 9.8 million conference papers from over 1,20,000 worldwide events. So this is actually the coverage, and you can also search by author name. From this author search, I have given my own name over here, and I retrieved my 9 documents which are published in the journals indexed by Scopus. Okay, and you can see all these journals, how many times they got the citations, what is my H index. My H index is 3 as per the Scopus, right? And this is diagrammatic representation also you will get. These are the list of my papers which are indexed, published in indexed journals in Scopus. Okay, so you can also search this page by giving the subject. You can enter your subject over here. This is drop down arrow given over here. So under social sciences, I clicked on my subject, that is library and information science, and I retrieved 289 results. That means 289 journals from my subject are indexed in Scopus. These are all the filters are given to make your searches easy. And what information on this page is available? The very first one is site score. Site score is the unique terminology which Scopus uses. It is nothing but it is just impact factor of the journal. Okay, it is equivalent to impact factor of the journal, but the terminology Scopus is using is site score. Then you can see, suppose I want to know the citations of 2018. So total citations for 2018 year is this. Then documents published in last 3 years. That is, if you want to calculate site score of 2018, then you will have to get the data from last 3 years. So that data is also given. And you can see over here, documents published from last 3 years. Then 2 values they are providing, that is SNIP and SJR. These are very, very important thing, and this is the metric for the year 2018. This is the journal which is the topmost journal, Journal of Information Technology, followed by International Journal of Information. So this is given rank wise, right? So this is actually the Scopus page. What do you mean by SNIP and SJR? That I will cover in subsequent slides. Now, what do you mean by site score and how it is calculated? So site score is the unique terminology which is used by Scopus, and it is equivalent to the impact factor. See, just I want to calculate the impact factor, that is the site score of Journal of Information Technology for the year 2018. Then which data I must know? See, how many documents are published. That means how many citable items are there in last 3 years. See, I want to calculate the site score for 2018. That is why I have taken previous 3 years, that is 17, 16 and 15. So during these
duration, last 3 years, 84 papers were published in all the issues of Journal of Information Technology. And in these 3 years, how many citations they got? These are the citable items, and for this, you got 635 citations. 635 divided by 84, that comes to 7.56. So 7.56 is the CITE score of Journal of Information Technology for the year 2018. See, every year these two variables will be different. So this CITE score fluctuates every year. Okay, it may go down, it may increase. And for this journal, these three numbers show the quality of the journal. See, हमने सबसे पहले देखा था, what do you mean by research matrices? That means you have to measure the quality in a number. Okay, so we got here the number. That is, the first one is CITE score, the second one is SJR, and the third one is SNIP. इतना सबको समझा? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here's CITE score. Yes, ma'am. Now we will see subsequently what SJR and SNIP is. Okay, but after few slides. Now, second citation metric database is Web of Science. See, Web of Science is there in university libraries, those who are having the subscription of Show the Sindhu. Okay, now this is the Clarivate page of Web of Science, and from here also you can use the filters from here, and also you can make the searches respective your subject, right? I have given library and information science and shortlisted some of the journals related to my domain. Okay, and in this way you can use Web of Science. That is also a very important tool. Okay, then the third one is Google Scholar. देखिए, there is a difference between Google and Google Scholar. अभी ये Google Scholar का पेज है. This is the search box, and you can see over here there are 3 lines there. देखिए, जहाँ पे भी 9 dots, 3 lines है, that means that is the indication that they are providing some services through this. So Google is a search engine, but Google Scholar is the purely scholarly communication part of Google, right? And when you put your own name in Google Scholar, you will get all your papers which are indexed in Google, right? And these are my papers actually. And one peculiar thing, for each paper, it is showing you how many citations it got. So यहाँ पे ये जो पेपर है, इसको 27 citations मिले हैं. Again, it is carrying a hyperlink. तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो कि आपका पेपर कहाँ साइट हुआ है, right? And this Google Scholar is providing you a unique service, and that is My Citation service. वो My Citation service के लिए आपको Gmail में ईमेल होना चाहिए. पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल जीमेल से अकाउंट खुल जाता था, लेकिन रिसेंटली they want institutional email in Gmail, right? So if you are fulfilling that particular requirement, then you will get your page created by Google Scholar. See, this is My Citation service, and it is providing me my whole papers which are there in Google Scholar, and it is also showing me that they got this many citations. Apart from this, it is also showing that how many citations I got till date. So this is some old page in my presentation offline, but now it has become 252. According to Google Scholar, my H index is 7. Now it has become 9. My I10 index is 9 now, and the then was 6. Okay. So what do you mean by I10 index? Again, I am getting the number. Okay. So I10 index का मतलब है आपके कितने पेपर 10 या 10 से ज्यादा बार साइट हुए, कितने बार साइट हुए, right? So it is showing that my 6 papers, they are having more than 10 citations. That is my I10 index. Now my H index is 7. So I will give you a simple technique how to calculate the H index. आपको क्या करना है? आपको सपोज आपके 10 पेपर्स पब्लिश हुए, राइट? तो आपने 10 पेपर्स लिख लिए.
और यहाँ पे आपने उसको करस्पॉन्डिंग कितने साइटेशंस मिले वो आंकड़ा आपने लिख लिया। फिर ये जो कॉलम है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, इसको ऐसे ही रखो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए जैसे कि मैंने लगाई हूँ, राइट। देखिए मेरे फर्स्ट पेपर को 1 से ज्यादा साइटेशंस है, दूसरे पेपर को 2 से ज्यादा है, तीसरे पेपर को 3 से ज्यादा साइटेशंस मिले हैं, चौथे पेपर को 4 से ज्यादा है, पांचवें पेपर को 5 से ज्यादा है, छठवें पेपर को 6 से ज्यादा साइटेशंस है, सातवें पेपर को 7 से ज्यादा साइटेशंस है। लेकिन मेरे 8वें पेपर को 8 से ज्यादा साइटेशंस नहीं है। दैट मीन्स मेरे 7 पेपर इंडिविजुअली 7 से ज्यादा बार साइट हो चुके हैं। दैट इज व्हाई माय H इंडेक्स इज 7, राइट। अभी देखिए होता क्या है, H इंडेक्स के कुछ लैक्यूनास है, मतलब कुछ लिमिटेशंस है। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तभी आपका H इंडेक्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर आपके स्टॉप हो गए, बढ़ने बंद हो गए, तो आपका H इंडेक्स, भले ये 10वां पेपर जो है उसको 100 साइटेशंस क्यों ना है, लेकिन आपका H इंडेक्स 11 नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आपका 11वां पेपर 11 बार साइट नहीं होता है। दैट इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ H इंडेक्स। उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव मेट्राइसिस भी आए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये आपको समझा हाउ टू कैलकुलेट H इंडेक्स? मैम बट ये H इंडेक्स Yes, क्या ma'am. इंडिकेट करता है, लाइक या सिग्निफिकेंस क्या है मैम? सिग्निफिकेंट, नहीं, आपको क्या बोलना है नहीं समझ में आया मुझे। मैम मुझे मतलब ये नहीं समझ में आया, तो ऐसे हमें मतलब क्या पता चलेगा H इंडेक्स से? H इंडेक्स जितना हायर है उतना क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च इज ट्रीटेड एज हाई। ओके, हाँ, H इंडेक्स वैल्यू आपका जितना ज्यादा होगा उतना आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च हाई माना जाता है। तो मैम यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ आर्टिकल को एज इट इज ही रखना है, 1 2 3 सीक्वेंस? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एज इट इज नहीं रखना है, आप ये जस्ट कैलकुलेट करने का सीधा तरीका मैंने आपको बताया। जैसे आपके 10 पेपर्स हुए हैं और आपको आपका आज का H इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको ये कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है और फिर देखना है कि इंडिविजुअली उतना ही नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहीं पे कट ऑफ हो जाता है। अभी ये 8 पेपर जो है ना उसको यहाँ पे 8 साइटेशंस मिल जाएंगे ना, तो आपका H इंडेक्स बढ़ के 8 हो जाएगा। ये 9 है ना, 9 को 9 से ज्यादा मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे यहाँ पे, तो वो 9 से 10 हो जाएगा। 9th नंबर का पेपर को मैम, राइट मैम? हाँ, 9th पेपर, हाँ, मतलब जैसे क्रोनोलॉजिकली नहीं, एट रैंडम आप इसको लिखो, एट रैंडम इसको लिख दो और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो और देखो 7 को 7 है या नहीं है, 8 को 8 है या नहीं है। यहाँ पे 8 को 8 नहीं आया है साइटेशंस, दैट मीन्स आपको यहीं पे स्टॉप होना पड़ेगा आज के लिए। ओके, गॉट इट? एंड द हायर द H इंडेक्स, आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च हायर माना जाएगा, राइट। नाउ गोइंग अहेड, ये जो 3 लाइन्स है उसमें आपको एक सर्विस दी गई है बाय गूगल स्कॉलर। जैसे उन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें मैंने सोशल साइंसेस को क्लिक किया, तो सोशल साइंसेस के लिए उन्होंने रैंकिंग ऑफ द जर्नल करके दिया है। ओके, उन्होंने H इंडेक्स के बेस पे उन्होंने इसको रैंकिंग करके यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी। तो मुझे जर्नल सिलेक्शन टूल के हिसाब से इट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम देखते हैं ना क्वालिटी ऑफ द जर्नल हम कैसे ढूंढेंगे, तो आप सोशल साइंस में आप कुछ लिख रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको गूगल स्कॉलर बोलता है जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स के लिए जाओ पब्लिकेशन के लिए, इट इज टॉप मोस्ट जर्नल, ठीक है। इसमें मैं सब कैटेगरीज को भी क्लिक करती हूँ, तो अंडर सोशल साइंसेस आई गॉट सो मेनी सब्जेक्ट्स, उसमें से मेरा सब्जेक्ट मुझे दिखा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो मैंने इसको क्लिक किया, तो गूगल स्कॉलर मुझे बता रहा है कि आज की तारीख में जर्नल ऑफ द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑन फर्स्ट रैंक, followed by Scientometrics, followed by Journal of Infometrics. So if I am searching for high quality journals, then it becomes a tool for me for the selection of the journal for publication, right? Now, we have seen Scopus, we have seen Web of Science, and then Google Scholar. Now there is one more subscription based service, that is Indian Citation Index. It is a quite new service,
and it is indexing the journals which are published from India. So they are covering around 1300 journals over here, and this is the homepage. You can also register yourself. If you are lucky, you will get the guest access for few days or few hours, right? And you can see over here, this is the homepage, and it is providing you some of the service after you subscribe it. See the journals which are indexed from various subjects by Indian Citation Index. You can see over here, agriculture 87, then biotechnology 13, biological sciences 92. These many journals it is indexing. See, this is the list you can see. So they are indexing these many journals published from India in various subjects. Now see, when you talk about journal issue, so it will cover various sections. So Indian Citation Index is actually indexing the information pertaining to research articles, review articles, short or brief communications, editorial, letter to editorial, research notes, case studies, case reports, opinion papers, and observations. But it is not indexing the information about advertisement, digests, obituaries, book reviews, news and views, announcements, and from the desk. And when you get the access, see, this is the registration form. You can fill out this registration form, and if you are lucky, you will get the guest access. Otherwise, you will have to go for subscription-based service for this. And after subscription, it is providing you some unique services like simple and advanced search, institutional analyzer, data comparator, journal analyzers, then cited reference search also it is providing to you. Now, if you want to search through this Indian Citation Index, suppose I have taken the keyword bibliometric and it should appear in a topic. So after searching, I retrieved 93 research papers on bibliometric. See, these are all the research papers, and this is the title. This is one paper, and it is giving you time cited, means the citations got to this particular paper is 6. Again, it is in blue color. It is hyperlink. You can click and see which 6 people have cited this particular title. Okay, and this author has given 14 references, means he has cited 14 different papers for writing his paper. So you can also click on this and see the references that which papers he has cited. So all these things it will give, and the entry will look like this, and also it will give the year-wise citations the paper got, okay, in diagrammatic representation. See, this is the bibliographic description, then this is the abstract keywords it is giving, and it also gives you the references cited by the by the author, and also full text if the journal is open access. See here, suppose if you want to see these 8 citations, okay, then this is the list you can see. And suppose you want to see the 14 references, then these are the 14 references the author has given, right? In this way, it gives you the information and also gives you such detailed year-wise citations the paper got. अभी इसके देखिए, ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस है, इसमें साइटेशन रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं, and which are very very important for measuring the productivity things, okay, research productivity. Then you can also see that it is providing 3 special services, that is institutional analyzer, data comparer, and journal analyzer. Suppose if you want to know that under agricultural institutions, which institutions research productivity is high according to Indian Citation Index, then you can see agricultural institutes. ये पूरे agricultural institutes है. You have to just click on those and you will get the research productivity. And the result of this slide is Indian Agricultural Research Institute, IRI, is on the topmost position
with 4411 articles published in journals and which are indexed in ICI, and followed by Indian Veterinary Research Institute with 2493 papers. It will again give you year-wise productivity details of all the institutes so you have selected. And see, all the beautiful diagrammatic representations are also provided over here. Second one is data comparer. Suppose at random, I want to see the productivity of 5 institutions and want to rank those. ऐसे अगर आपको करना है तो just at random click on these boxes, select the institutes and go for the search. It will give you the ranking along with its research productivity in terms of papers, right? So ये भी एक सुविधा डेटा कंपेरर की वो देता है, और ये पूरा चीज जो है वो लाइन डायग्राम ईयर वाइज ब्रोकअप ऐसे करके वो आपको पूरे डिटेल्ड रिपोर्ट्स यहाँ पे दे रहा है. So this is also a very important thing to measure the quality. And then there is one more special service provided by ICI, and that is journal analyzer. Under this journal analyzer, suppose you want to know one journal which is from science domain, that is current science. तो करंट साइंस का आपको पिछले 10 साल का प्रोडक्टिविटी क्या है उसको अगर आपको देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस and you can see year wise articles, how many citations they got, how many are the self citations, and uska JCI क्या है, journal citation index क्या है according to ICI, right? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो. So this is a subscription based service. इसमें अगर आपको articles ढूंढना है तो you can also go for articles. 3 level searches are possible. See, level 1 library and information science, level 2 academic libraries I have chosen, third one is college library. So I got these 2-3 papers from college library. So these searches is also possible. And cited references means author has cited some references. Under those references also you can make the search. Okay. And it also gives you the answers of the queries like who is the most cited author this year. Okay, अगर इस प्रकार से आपको ये भी वो देता है which is the most cited author in the subject library and information science. Okay, तो इस प्रकार से भी वो आपको जो है डिटेल्स देता है, right? So this is Indian Citation Index. There are other services also, but these are not important for us, so I'm skipping these services. But you should remember 4 services as far as citation measuring databases are concerned: Scopus, Web of Science, My Citation service of Google Scholar, and the 4th one is Indian Citation Index. Now I am coming to impact factor. Actually, impact factor is the terminology which is used by Web of Science. How it is calculated? See, just like site score, आपको क्या चाहिए? अगर if you want to calculate the impact factor of the journal Cell, okay, it is a very renowned international journal Cell. I want to calculate its impact factor for the year 2009. Then I will go for the data for previous 2 years, that is 2008 and 2007. Which data I should take? How many items published in Cell in 2008 and 2007? In 2008, 343 papers were published in Cell. In 2007, 366. That comes to 709. And during these 2 years, how many citations they got? Okay, so in 2008, all these papers got 9533 citations, and 2007 they got 12,554 citations. That addition comes to 22,087 divided by total articles published 709, and that comes to 35.152. That is actually the impact factor of the journal Cell for the year 2009. Again, every year it will fluctuate. Okay, ये समझा? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are going ahead. See, there are n number of impact measurement services. Okay,
इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज बहुत सारी कंपनियां आपको देती है, लेकिन 2018 का आपके कैश पर्पस के लिए जो एपीआई की जरूरतें दी है यूजीसी ने आपको फॉर प्रमोशंस, राइट, तो उसमें 2018 में उन्होंने कहा है कि साइट स्कोर या आईएसआई इम्पैक्ट फैक्टर पे ही आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे. See, there is one lecture, as Preeti ma'am told me, that I have to engage one lecture on API and PBS. Okay, in that particular lecture, I will show you. This will serve as the base, and I will show you actually how you can gain more marks for a single paper. Okay, based on this impact factor. So, for introductory purpose, just you should remember that there are n number of services which provide impact factor. For example, International Impact Factor Service, that is IIFS, International Services for Impact Factor and Indexing, ISIFI, Universal Impact Factor Services for International Journals, IFSIJ, Index Copernicus, then NAS rating, Global Impact Factor, Cosmos Impact Factor. These are all the services which are providing you their services. They are giving you a number which is called as impact factor of the journal. देखिए, साइटेशन इंडेक्स ऑथर का भी हो सकता है, साइटेशन इंडेक्स जर्नल का भी हो सकता है, बट इम्पैक्ट फैक्टर ऑथर का नहीं होता है. Impact factor is the terminology which is used to denote the quality of journal only. Okay? और आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप इम्पैक्ट फैक्टर लिखोगे तो उसके पहले वो इम्पैक्ट फैक्टर कौन सी सर्विस का है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड. अगर आप लिखते हो साइट स्कोर 0.21 तो फट से दिमाग में आ जाता है दिस जर्नल इज इंडेक्स्ड इन स्कोपस और उसका ये साइट स्कोर है. दूसरी चीज, आप बोलते हो आईएसआई इम्पैक्ट फैक्टर तो आपको तुरंत ध्यान में आता है आईएसआई इम्पैक्ट फैक्टर, दैट मीन्स दिस जर्नल इज इंडेक्स्ड इन वेब ऑफ साइंस. ओके, देखिए ये वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वही आपको प्रमोशन के लिए काम आएगा फॉर एडिशनल मार्क्स फॉर योर पेपर. कीप इट क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू जज प्रीडेटरी सर्विसेज ओवर हियर. सी, इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज, इसका अगर हमने जब मैंने इसको एक्सेस किया था तब मैंने जब इसको देखा होम पेज को, see there are blender mistakes in the main links. Evaluation का spelling गलत है, methodology का spelling गलत है. You can see there is one alert given. This is to inform you that somebody is using our name to deposit the fee for impact factor, and he is saying that he show your impact factor in our website but do not reply those mails. तो ऐसे misleading information आपको जहाँ पे मिल रहा है. देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर इज अ प्योरली स्कॉलरली मैटर, इजंट इट. और यहाँ पे जब ऐसी चीजें हमको मिलती है तो नेचुरली उनका क्वालिटी पे थोड़ा सा हमें डाउट आता है. देयर इज वन मोर सर्विस, इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर इम्पैक्ट फैक्टर एंड इंडेक्सिंग. यू कैन गो टू जर्नल्स मास्टर लिस्ट एंड यू कैन सी हाउ क्वालिटेटिव जर्नल्स दे आर इंडेक्सिंग. देन महाराष्ट्र से कुछ जर्नल्स पब्लिश होते हैं जिनको यूआईएफ है, that is universal impact factor. उसके बाद में IFSIJ, there is one more. A Index Copernicus International, ये भी एक सर्विस है, साइटेशन में इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइडर है ये, लेकिन it is not at all using the terminology impact factor. उनका एक अलग फॉर्मूला है और वो ICV वैल्यू देते हैं, इंडेक्स कोपरनिकस वैल्यू देते हैं, राइट. सो अगर आपका जर्नल इंडेक्स कोपरनिकस में इंडेक्स्ड है तो यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, ICV फॉर 2019 इज 154.27. ठीक है, तो ये क्लियरली आपको लिखना है. दूसरी चीज आगे चलते हैं. देयर इज वन मोर फॉर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स, लेकिन उनके प्रमोशंस के लिए, सिलेक्शंस के लिए नास रेटिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. Actually, this is also a renowned one, but actually it is
बेस्ड ऑन ISI थॉमसन एंड रूटर इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब उसका बेस जो है ISI थॉमसन एंड रूटर इम्पैक्ट फैक्टर होने की वजह से, उसके बाद वो एक फॉर्मूला लगता है स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड वन, नास रेटिंग. Then there is one more, that is global impact factor, that is GIF. Then I will give you some more. Cosmos is also there. महाराष्ट्र से कुछ जर्नल्स जो है साइंस के, वो कॉस्मोस इंडेक्स्ड है. ये पूरे उनकी लिस्ट दिया हुआ है उन्होंने कि कौन से ये है. और कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर आप जब लिखोगे CIF, दैट इज कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर, आप इतना है या आप लिख सकते हो, लेकिन आपको क्लियर बता दूं, इसको आपको एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे स्क्रूटिनी में. Now, there is one more, that is general impact factor. You can see GIF again. There is one more, that is scientific journal impact factor, SJIF, and it is claiming that it is indexing 19,000 journals. You can also search to this master list. Now, देखिए अभी आज की जो स्थिति है, 2009 में हमारा API शुरू हो गया, और आज की जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि there are some predatory publishing trends are observed. Okay, तो कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने एक साथ आए, उन्होंने डेलिब्रेशंस किया, और उन्होंने एक स्कॉलरली ओपन एक्सेस करके एक ब्लॉग खुला था, और उसमें उन्होंने डिस्कशंस किए कि हाउ दिस इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज आर नॉट ऑथेंटिक. ओके, they have given the title look out for bogus impact factor companies, but we will say it is not authentic. Okay, the nice word. See, they have treated this as a market, और ये सही में अभी मार्केट हो गया है. Okay, the proliferation of predatory open access publishers has created several new and expanding markets. One of these is the market for journal rankings, because few predatory publishers are able to earn legitimate journal rankings. Companies have emerged that for a fee award bogus impact factors to low quality journals. Now see friends, why research matrices is very important. क्योंकि आप इतना रिसर्च करते हो, इतना मेहनत करते हो, और आपके पब्लिकेशंस अगर प्रीडेटरी जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, तो आपके लिए कितना सेटबैक है. वो सेटबैक आपको नहीं होना चाहिए करके आपको ये नॉलेज होना जरूरी है. देखिए, whenever I will engage your lectures, maybe on 17th of this month on API, in that particular lecture I will also tell you how to understand the predatory journals and how to avoid those journals. So don't send your publications before you know the full journal matrices. Okay, अभी देखिए इन्होंने डिस्कशंस किए, और उन्होंने कुछ ऐसे इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज को कहा उन्होंने कि बोगस है. देखिए, ये जो वेब ऑफ साइंस था वो 1960s में शुरू हुआ, एंड दैट वाज प्रिपेयर्ड मैन्युअली. साइंस साइटेशन इंडेक्स, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट साइटेशन इंडेक्स, देन सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स, ये पहले पूरे प्रिंट फॉर्मेट में पब्लिश होता था बाकायदा, and those were published by ISI, that is Institute for Scientific Information. Later on in 1980s, Thomson and Reuters company taken the charge of this, and they made it online publication. Okay, so Web of Science impact factor is always known by its parent organization, that is ISI. What these particular services they did, they expanded the title by prefixing global word to it. Okay, it is GISI. So experts ने कहा कि this bogus organization is an obvious appropriation of the former Institute of Scientific Information, which no longer exists. Its impact factor was taken over by Thomson and Reuters. I think this operation is based in India, but they provide no location information on their website, and their domain name information is blocked. Okay, तो आपको इससे बचना है. That is why this session is there. Now, what are journal evaluation tools? देखिए,
वेब ऑफ साइंस पब्लिशेस एवरी ईयर जर्नल साइटेशन रिपोर्ट. उसमें वो पूरे जर्नल्स का रैंकिंग करता है, जितने भी जर्नल्स उसमें इंडेक्स्ड है. सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग करता है, उसके इम्पैक्ट फैक्टर्स कैलकुलेट करता है, एंड इट इज प्रोवाइडिंग यू साइटेबल आइटम्स, citations they got, last 3 years citations, and they are also providing you the impact factor of that particular year. So this is journal citation report. It is called as JCR, and it has got extra fees other than the subscription to Web of Science, right? Then second evaluation tool is Scopus. Scopus every year gives you Scopus journal analyzer, and through which you can see the parameters. And this Web of Science is subscription based. Scopus is also subscription based, but based on Scopus database, you can get 2 more services which are totally open access and free of cost available. And these are Schemago Journal and Country Rank, that is SJR, and SNIP, that is Source Normalized Impact per paper. Okay, these 2 numbers you can get based on Scopus database. Okay, and these are totally free. That means if you don't have Scopus subscription, then also you can get all these numbers for your NAC purpose or your individual resume purpose. Okay. Now, going ahead, Thomson and Reuters publishes JCR. JCR कुछ इस प्रकार से देता है वो रैंकिंग ऑफ द जर्नल्स. जैसे वो यू कैन सी उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उन्होंने कहा है कि कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस इज द टॉप मोस्ट जर्नल, एंड इट्स इम्पैक्ट फैक्टर है 223.679, followed by Nature Review Materials. Like that, it will give you the details. Scopus is also giving you the details about these things. But for Scopus, go to Google and type Schemago Journal and Country Rank. You will get this particular page. और ये पेज आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसमें देखिए, इसमें आपको इस प्रकार से जर्नल्स का रैंकिंग मिलेगा. अकॉर्डिंग टू स्कोपस ऑल्सो कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस इज ऑन द टॉप मोस्ट पेज. और यहाँ पे वो क्या क्या दे रहा है देखिए. दिस इज Q1 इन ग्रीन कलर. अभी वो Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 पैरामीटर्स आपको देता है. उसका डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्लीज नोट हियर कि इस जर्नल का JCR है, SJR है 72.576. एक्चुअली NAC और जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का रैंकिंग करते हैं उन सबको ये वैल्यूज देना जरूरी होता है, राइट. देखिए, ये जर्नल का H इंडेक्स इज 144, राइट. इसमें 2018 में 45 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए. लास्ट 3 इयर्स में 127 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए. ओके, उसके बाद में कौन सी कंट्री से वो है, कितने साइटेशंस उसको मिले हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको स्कीमैगो जर्नल रैंकिंग में से मिलता है. ओके, उसके बाद में मैंने यहाँ पे सर्च में गई स्कीमैगो जर्नल रैंकिंग में, सोशल साइंसेस को क्लिक किया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन किया, मैंने कंट्री को नहीं क्लिक किया, मैंने टाइप को भी नहीं क्लिक किया, ईयर मैंने 2018 डाला. तो वो मुझे बता रहा है कि स्कोपस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इरिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री 227 जर्नल्स इंडेक्स्ड है. उसमें से टॉप मोस्ट जर्नल जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च है विद SJR 3.476, और ये उसके पूरे टोटल डॉक्यूमेंट्स, 3 इयर्स डॉक्यूमेंट्स, टोटल साइटेशंस, ये पूरे डिटेल्स वो मुझे दे रहा है. अभी मैंने क्या किया कि अभी मैंने यहाँ पे इंडिया चुना, तो ये 227 में से मेरे विषय का केवल 3 ही जर्नल्स है जो स्कोपस में इंडेक्स्ड है. These are the 3 journals. That too not in Q1 कैटेगरी, Q2 में है, Q3 में है और Q4 में है. ये जर्नल का H इंडेक्स इतना है. टोटल डॉक्यूमेंट्स 2018 में इतना पब्लिश हुए, लास्ट 3 इयर्स में इतने पब्लिश हुए, 2018 में इतने उसको साइटेशंस मिले,
टोटल 3 साइट्स आप देखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से कहाँ से पब्लिश होता है, तो इंडिया से पब्लिश होता है। अभी ये फर्स्ट जर्नल है तो उसका H इंडेक्स 8 है, राइट। उसका पूरे इस प्रकार से डायग्रामेटिक स्कोपस के रिप्रेजेंटेशन आपको स्कीमेगो कंट्री रैंक से मिलेंगे। तो स्कीमेगो साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू टू प्रोजेक्ट योर रिसर्च फॉर द कमिटीज आल्सो, ओके। उसके बाद में दूसरा जर्नल था एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, उसके H इंडेक्स 9 है। उसके बाद में इसके भी पूरे जो डॉक्यूमेंट्स के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। मुझे जस्ट कंट्री रैंकिंग भी है ना, तो मुझे लगा कि स्कोपस में कौन से नंबर पे हमारा इंडिया है। सो फर्स्ट नंबर पे यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड यूके, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ जापान, सिक्स फ्रांस, सेवन कनाडा, इटली, देन 9 पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया से तकरीबन 16,70,000 पेपर्स स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। उसमें से साइटेबल इतने हैं, उसको साइटेशंस इतने मिले हैं, उसमें से सेल्फ साइटेशंस इतने हैं, ओके। और उसका H इंडेक्स 570 है। एज अ कंट्री हमारा H इंडेक्स 570 है और साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट 9 है। और अपने कंट्री का भी अगर प्रोफाइल आपको देखना है स्कोपस का, तो आपको इस प्रकार से पूरे ग्राफ्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी ग्राफ्स मिलेंगे थ्रू दिस फ्री साइट बेस्ड ऑन स्कोपस। मैंने सोचा कि मेरे विषय में इंडिया कौन से नंबर पे है, तो मेरे विषय में भी इंडिया 9th नंबर पे ही है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इंडिया का है, ओके। हाँ, अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है। तो स्कोपस में जितने भी जर्नल्स इंडेक्स्ड है उसको अगर हम 100% मानते हैं, तो 1 से लेकर 25% के बीच में जो जर्नल्स आते हैं वो Q1 कैटेगरी में आते हैं, 25 से 50 के बीच में Q2 कैटेगरी, 51 से लेके 75 तक जो है दैट इज Q3, एंड 75 से लेके अगर आप 100% तक जाएंगे तो Q4 कैटेगरी। Q1 कैटेगरी मीन्स द हाईएस्ट क्वालिटी जर्नल्स, Q2 इट इज फॉलोड टू Q1, Q3 उसके नीचे, और Q4 is the last percentage, right? So whenever you have publications in Scopus index journals, you need to give 4 values. First one is site score of the journal, second one is SJR of the journal, third one is whether the journal is in Q1, Q2, Q3, Q4, and the fourth one is SNIP. सो स्कीमेगो जर्नल रैंक जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एंड सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर SNIP जो है वो भी आपको SJR से मिलेगा। इट इज द इम्पैक्ट पर पेपर, राइट। नाउ इतने सारे अगर स्कोपस पब्लिकेशन है तो इतने सारे नंबर्स आपको वहां पे देना जरूरी होता है, राइट। हैव यू गॉट दिस थिंग? Hello, how to qualify your research, okay? Yes, so, madam. Yes, madam. You provide these 4 numbers now, the committee will get impressed there only. Now book impact के लिए जैसे बुक रिव्यू डेटाबेसेस होते हैं, गूगल स्कॉलर है, गूगल बुक्स है, फैक्टिवा, गूगल बुक्स, जेस्टर, इनके कुछ बुक रिव्यू डेटाबेसेस होते हैं दैट कैन बी यूज्ड। अभी इंडिविजुअल रिसर्च इम्पैक्ट के लिए गूगल स्कॉलर में आपने हर एक ने खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो ट्राई पब्लिश और पेरिश, दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड इट इन योर कंप्यूटर। देन स्कॉलरोमीटर, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, H इंडेक्स प्रेडिक्शन एंड अल्टमेट्रिक्स, दीज आर द इंडिविजुअल रिसर्च मेट्रिक्स। जैसे मैंने गूगल स्कॉलर में से मैंने मेरा H इंडेक्स बताया था 9 है, स्कोपस में से मैंने मेरा खुद का H इंडेक्स बताया था 3 है, राइट। तो ये H इंडेक्स आप दे सकते हो। H इंडेक्स के कुछ लैकिनास मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव मैट्रिक्स भी आए हैं, दैट इज M इंडेक्स, इंडिविजुअल H इंडेक्स, यूनिवर्सल H इंडेक्स एंड G इंडेक्स। ये G इंडेक्स है दैट मे बी ट्रीटेड एज द अल्टरनेटिव फॉर H इंडेक्स।
अभी see, Google Scholar is a free service, Publish or Perish is a free software, Scholorometer is a free web browser, Web of Science, Thomson and Newton subscription based citation measuring database, Scopus Elsevier का है, subscription based database है, citation measuring. H-index prediction is online tool है, which is developed by Conrad Codings and colleagues. And Altmetrics, it is the metric for social web. उसके पहले if you are a good researcher, you should make your presence online through researcher profiles. जैसे सोक्रेटिस है, विद्वान है, थॉमसन एंड रूटर का रिसर्चर आईडी है, माय साइटेशन का आपका ये होना चाहिए, स्कोपस ऑथर आइडेंटिफायर होना चाहिए, ऑर्किड आईडी आपका होना चाहिए, ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी. नाउ सी दिस इज विद्वान डेटाबेस. इनफ्लिपनेट विच इज द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ यूजीसी, तो उन्होंने एक विद्वान डेटाबेस बनाया है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन मोर देन 54,000 एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है. आप भी यहाँ पे लॉगिन क्रिएट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो खुद को, एंड यू कैन ऑल्सो अपलोड योर प्रोफाइल. इससे क्या होता है कि इफ एनीबडी वांट्स सम स्पेशल एक्सपर्ट पर्सन, then he can go and search विद्वान डेटाबेस रिसोर्स पर्संस के लिए. देखिए मैनेजमेंट के, बिजनेस फाइनेंस के, ये सर्विस 2009 में शुरू की थी और द देन डायरेक्टर ऑफ इनफ्लिपनेट वाज डॉक्टर जगदीश अरोरा. उन्होंने खुद का ही प्रोफाइल पहले बनाया है एंड हिज एक्सपर्ट आईडी इज 1. तो ऐसे ही आप लाइब्रेरी साइंस का देख सकते हो, आप आपके विषय का देख सकते हो जो भी आप है. फिर ये हमारे मेरी जो कलीग है उसका है. तो आपको इसमें आपके पूरे पब्लिकेशंस डालने हैं और जहाँ पे भी आप रिज्यूम लगते हो वहाँ पे इसका विद्वान आईडी आपको देना है. स्कोपस ऑथर आइडेंटिफायर में आपका ऑटोमेटिक सर्च हो जाता है. अभी वेब ऑफ साइंस का रिसर्चर आईडी आपको क्रिएट करना पड़ता है. तो इसके लिए आपको पबलॉन्स और पबपियर्स करके 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो लॉग इन टू रिसर्चर आईडी ऑन पबलॉन्स के लिए अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगी, उसको आप फुलफिल करते जाइए. सो यू विल बी गेटिंग 1 रिसर्चर आईडी D3932 2015. देखिए अभी ये जो नेशनल रैंकिंग होता है ना यूनिवर्सिटीज का वगैरह, तो उसमें पूरे टीचर्स का बायोडाटा नहीं मांगा जाता, उनके रिसर्चर आईडीज मांगे जाते हैं. वो रिसर्चर आईडीज उनके पास में गए तो ये उससे वो उनका पूरा पब्लिकेशंस देख सकते हैं. देयर इज वन मोर दैट इज ऑर्किड आईडी. इसको भी आपको देखना है. फॉर रिसर्चर्स को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो यू विल गेट द योर ओन ऑर्किड आईडी. जैसे कि मैंने मेरा ऑर्किड आईडी यहाँ पे किया है, तो आपको ये ऑर्किड आईडी अगर आप देते हो तो आपके पूरे पब्लिकेशंस, आपका अनुभव, आपके बारे में सभी चीजें वो एक आईडी में आती है. राइट. अभी देखिए सोशल वेब के लिए नया मैट्रिक्स आया, अल्टमेट्रिक्स. अभी ये अल्टमेट्रिक्स जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय एक डॉक्टरल स्टूडेंट ने किया था, जेसन प्रिन ने 2010 में. Actually, it is a new matrices for social web for analyzing and informing the scholarship. अभी ये डेटा कहाँ से लेता है? ये ट्विटर से, फेसबुक से, गूगल प्लस, देन गवर्नमेंट के जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें नीचे रेफरेंसेस दिए होते हैं, वो रेफरेंसेस को ये ट्रैक करता है. मेनस्ट्रीम मीडिया, ब्लॉग्स, मेंडले, साइट यू लाइक, पबपियर, पबलॉन्स, रेडिट, विकिपीडिया, देन यूट्यूब, यहाँ से वो पूरा डेटा लेता है अल्टमेट्रिक्स का. अल्टमेट्रिक्स आपके कौन से क्वेश्चंस का आंसर देता है? हाउ मेनी टाइम्स इट वाज डाउनलोडेड, हु इज रीडिंग माय वर्क ऑन मेंडले बुकमार्किंग साइट्स, देन वाज इट कवर्ड बाय एनी न्यूज एजेंसीज, आर अदर रिसर्चर्स कमेंटिंग ऑन इट, हाउ मेनी टाइम्स इट वाज शेयर्ड ऑन फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, इन व्हिच कंट्रीज दे आर रेफरिंग माय रिसर्च. ऐसे क्वेश्चंस का वो आंसर देता है. इसके कुछ टूल्स है जैसे altmetric.com, ourresearch.org, Plumx Metrics, Reader Meter, PLOS Article Level Metrics, Publish or Perish, Science Card, Paper Critic, Crowdometer, right? ये altmetric.com वेबसाइट है. यहाँ पे आप फॉर रिसर्चर्स के लिए जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ये altmetric.com क्या करता है कि पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स
में जो भी है उसको ट्रैक करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में से हाई प्रोफाइल कवरेज फ्रॉम ओवर 2000 आउटलेट्स अराउंड द वर्ल्ड। देन ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर्स जो है जैसे मेंडले, जोटेरो। देन पोस्ट पब्लिकेशन पीयर रिव्यू प्लेटफॉर्म पब्लॉन्स एंड पपियर्स, इंग्लिश वर्जन ऑफ विकिपीडिया, ओपन सिलेबस प्रोजेक्ट्स, देन वेरियस ब्लॉग्स, then citations जैसे पेटेंट citations, then research highlights, then Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Cinvibo, Pinterest, then multimedia platforms like YouTube। यहाँ से वो डेटा लेता है, डेटा को ट्रैक करता है। देन अवर प्रोजेक्ट्स करके भी एक वेबसाइट है, वो भी कुछ हद तक अल्टीमेट्रिक्स देने की कोशिश करती है। प्लमेक्स मेट्रिक्स में देखिए ये सर्विस आपको देती है साइटेशंस, यूसेज, कैप्चर्स, मेंशंस एंड सोशल मीडिया। That means citations means citation indexes, patent citations, clinical citations, policy citations. Usage means how many clicks, download, views, video plays. Captures means whether they are captured by bookmarks, code folks, favorites, readers, watchers. Mentions in blog posts, comments, reviews, Wikipedia references, news media. Then on social media, how many shares, likes, comments, tweets, etc. And reader meter is also one of the site. Then there is one more that is PLOS, article level metrics. इसमें मैंने सर्च में गई और मैंने COVID-19 कीवर्ड दिया। I retrieved 3 articles। ये जो पहला आर्टिकल है उसका अगर मुझे ये देखना है अल्टीमेट्रिक, तो मैंने इसको क्लिक किया। वो बता रहा है प्लॉस व्यूज आर 1921, पीडीएफ डाउनलोड्स 2170, एक्सएमएल डाउनलोड्स 917, टोटल यूसेज इज 5008। ऑन ट्विटर इट वाज डिस्कस्ड 14 टाइम्स एंड क्रॉस रेफरेंस इज 1। तो इस प्रकार से वो आपको सोशल वेब पे जो आपका रिसर्च है उसके बारे में देता है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और देखिए उसमें डेटा किस प्रकार से मिल रहा है आपको। साइंस कार्ड इज also one of the tool, paper critic is there and crowdometer is there. So these are under construction, all these tools are. So friends, this is actually research matrices and our name was to measure the quality of research in terms of a number. So I have told you which numbers are very important for all of you. That is H index, I10 index, wherever you got the impact factor, ISA impact factor, Thomson and Reuters का, ये सब चीजें जो है ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। So friends, जितना सिंपल कर सकती थी I have tried to do my best. If you have any queries, you can ask queries over here. Otherwise, quickly I will share another presentation. मैम मुझे क्वेरी है मैम, लाइक अगर हमारा ऑर्चिड आईडी हमने क्रिएट ऑलरेडी करके रखा है, फिर भी हमें ये और अदर आईडीज क्रिएट करना जरूरी है मैम, या लाइक लेक्चर्स मी येते तिथे मी सॉरी अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज येते सर, मी भेटते तुम्हाला। हाँ बोलिए मैडम फिर से। हाँ मैम, अगर हमने ऑलरेडी ऑर्चिड आईडी क्रिएट करके रखा है तो फिर हमें डू वी हैव टू जनरेट अदर आईडीज एज वेल? हाँ ओके, देखिए विद्वान आईडी आपको क्रिएट करना ही करना है बिकॉज इट इज यूजीसी प्लेटफॉर्म। ओके मैम। ऑर्किड भी करना है। इफ यू आर हैविंग योर पेपर्स इन वेब ऑफ साइंस, तो आपने वेब ऑफ साइंस का भी ऑर्किड वेब ऑफ साइंस का भी आईडी क्रिएट करके रखना है। दिस इज एक्चुअली द नेसेसरी थिंग्स। अभी क्या करते हैं देखिए, ये जो भी रैंकिंग्स होते हैं ना इंस्टीट्यूशन के, हाँ मैम, NIRF रैंकिंग वगैरह, तो वो लोग अभी आजकल प्रोफाइल्स नहीं मांगते। They straight away ask you to provide your IDs. ओके, उसमें उनको डेटा मिल जाता है। ओके मैम। सो बेटर के हमारे जितने ज्यादा हो उतने आईडीज करके रखें हम। हाँ, आईडीज बनाना ही है। इफ यू आर एक्टिव रिसर्चर, आपके आईडीज होने ही चाहिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। मैम मेरी एक क्वेरी है कि ये जो स्कोप्स यूजुअली है ना, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, उसमें बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो 2024 तक ही उन्होंने अभी उस पे रखे हुए कि 2024 तक वो रजिस्टर्ड है स्कोप्स में। हाँ।
2025 में अभी नहीं है वो बहुत सारे जर्नल्स। तो उसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उस टाइम पे तो वो काउंट होंगे। देखिए 24 तक जो है काउंट होंगे, इसके बाद में भी काउंट होंगे सर, क्योंकि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस दिस टू सर्विसेज आर द इंटरनेशनली नोन सर्विसेज। अभी देखिए यूजीसी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, इट डज नॉट मीन स्कोपस सब स्टैंडर्ड हो गया। ओके मैम, सो दैट अगर वो 2024 तक ही उसको कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूड है, हाँ। तो देखिए तो अभी उसके बाद भी 24 के बाद में कोई हमको आया, कोई नया टूल आया है क्या? नहीं मैम, यूजीसी की तरफ से यूजीसी केयर जो है उन्होंने डिसकंटिन्यू करने के बाद में हमारे पास में कुछ है आज की तारीख में? नहीं मैम, अभी कुछ नहीं तो है मैं जिसकी अभी तरफ एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि जी मैम। पहले तो इतना खुल्लम खुल्ला नहीं होता था, लेकिन अभी तो एकदम खुल्लम खुल्ला आपको मेल आ रहे कि बैकडेटेड में पब्लिकेशन कर देते हैं, एंड दे जी आर मैम। चार्जिंग इन थाउजेंड्स, यस मैम। है ना? तो यस आप मैम। हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि यूजीसी ने अगर डिसकंटिन्यू किया है, इट डज नॉट मीन स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस दीज आर द इंटरनेशनली रिनाउंड ना। तो ये ओके मैम। ट्रांजिशन पीरियड में आपके पेपर्स आते हैं तो उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा उनको, ओके मैम। अंटिल एंड जो जब तक वो ओके दूसरा कोई हमें पर्याय नहीं देते। ओके मैम, ये जो है ना एज यूजुअल जो है वहाँ बहुत सारे जर्नल्स, जो असल में दूसरा पॉइंट था मेरा, वो 2025 तक, जिस तरह हम कह रहे हैं कि जो लिस्टेड जर्नल्स है स्कोप्स में, वहाँ उसमें डेट दी होती है 2024 या जो भी डेट पहले स्टार्टिंग से हो और कब तक है वो 2024 फॉर एग्जाम्पल, और कोई अभी भी कंटिन्यू है, बराबर है ना? तो उसमें जो 24 वाला है ना, 24 वाला अप टू 24, क्या उसमें हम आर्टिकल दे सकते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाएगा 2025 में कि ये यूजीसी, ये सॉरी स्कोपस लिस्टेड जर्नल? नहीं, स्कोपस से डिसकंटिन्यूड का ये इंटीमेशन कब का है? ये यूजुअली जो है ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जर्नल्स है जो अभी 2024 तक ही वो दिखा। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको आज पेपर भेजना है जी मैम। तो आपको सोर्स लिस्ट में जाना है। ओके मैम। स्कोपस सोर्स लिस्ट में जाना है। ओके मैम। सोर्स लिस्ट में जो जर्नल है उसी में पब्लिश करना है मैम बिल्कुल उसी में, तो उसी में क्या आता है जब हाँ, उसी में जाना है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं जाना है आपको। देखिए मैम उसी, मैंने कल ही एक जर्नल था उसको प्रीडेटरी जर्नल करके जस्टिफाई कर दिया। एक जर्नल था हमारे विषय का नहीं था, इंटरडिसिप्लिनरी वाला था वो, मल्टी डिसिप्लिनरी, और वो मेरे सामने आया तो वो स्कोपस में दिखा रहा है पूरा कि है, लेकिन स्कोपस हमको क्या डायरेक्शन दिया, गो टू सोर्स लिस्ट एंड क्रॉस चेक इट। ओके मैम। तो हम सोर्स लिस्ट में गए तो सोर्स लिस्ट में वो जर्नल ही नहीं था, एंड द जर्नल पब्लिशर वाज आस्किंग फॉर मनी इन थाउजेंड्स दैट इट इज इंडेक्स्ड इन स्कोपस करके। तो हमने हमारे स्टूडेंट्स जो लेके आए थे उनको बोला नहीं, इसमें नहीं जाना है आपको, गो टू सोर्स लिस्ट, चेक दोस जर्नल्स एंड देन गो अहेड। ओके मैम, देयर इज वन क्वेश्चन जो है ना जो अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ। जो सोर्स लिस्ट में हम जाते हैं वहां पे जर्नल का नाम आता है, ठीक है मैम? हाँ। तो वहां पे नीचे डेट भी लिखी आती है कि कब से हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ है, स्टार्टिंग बिगनिंग कब से हुई है स्कोप्स में, हाँ। और किस डेट तक है ये, हाँ। और मेरा फोकस पॉइंट है एंड डेट। हाँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे जर्नल्स है जो 2024 तक दिखा रहा है कि जिसमें 2025 लिखा है उसको ये कर दीजिए ना, दे मे बी अंडर ट्रांजिशन। इसमें क्या है, वो हर साल कुछ जर्नल्स को एग्जामिन करते हैं और डिसकंटिन्यू करते हैं, इसलिए वो आखिर का डेट देते हैं, देन अगेन दे री-एग्जामिन इट एंड कंटिन्यू इट। यस मैम, कुछ जर्नल्स में तो सीधा वो डिसकंटिन्यू लिखते हैं, कुछ में डिसकंटिन्यू करते हैं 2024 तक, कुछ में स्टिल लिखते हैं कंटिन्यू। जहाँ पे भी उनको कुछ उनके पैरामीटर्स नहीं मिले तो वो उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, थैंक यू यस सर। So shall I start with the new topic? मैम एक मैडम हेलो। Yes. मैम
मानिए कि कोई पेपर ने जर्नल ने लिखा है कि फर्स्ट डिसीजन का टाइमिंग अगर उन्होंने 15 डेज लिखा है, अगर हमें 15 डेज में वहां से रिप्लाई नहीं आता है तो हम ये कंसिडर करें, मतलब लाइक हम दूसरी जर्नल में सबमिट कर सकते हैं पेपर, या वी हैव टू वेट फॉर देयर रिप्लाई? You will have to wait. ओके मैम, बट मैम उन्होंने 15 डेज में नहीं दिया जैसा उन्होंने उनकी साइट पे लिखा था। इट में डिले, लेकिन आपको रुकना है जब तक उनका ये नहीं आता है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड। मैम लेकिन 15 डेज से बहुत ही ज्यादा, लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए हैं, तब भी हमें कभी 6 मंथ्स लगता है मैडम, कभी 1 साल लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपने दूसरे जर्नल में उसको पब्लिश कर दिया मीनवाइल, और उसने भी पब्लिश कर दिया, तो प्लेजरिज्म होता है वो। हाँ वो तो है मैम। इसीलिए क्या है कि आप उनको करस्पॉन्डेंस करो कि आपने 15 डेज में हमको नहीं बताया, तो आगे कुछ होप है क्या? अगर उनसे आता है कि वेट, तो फिर आप लोगों को वेट करना जरूरी है। अदरवाइज यू इन्फॉर्म देम कि इतने दिन मैं नहीं रुक सकती, आई एम सेंडिंग पेपर टू अनदर जर्नल, और उसका पूरा करस्पॉन्डेंस सेव करके रखिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू Ma'am, there is another question, so I can add more information to this previous question that ma'am was asking about. So ये जो है ना मैम, is there any प्लेटफॉर्म जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि मैंने जो अपना आर्टिकल दो जर्नल में या 3 जर्नल में एक साथ भेजा है? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कंफर्म कर सकता है कि मेरा जो आर्टिकल है जो मैंने सबमिट किया है पब्लिशिंग के लिए, वो 3 जर्नल्स के अंडर कंसिडरेशन में है, 4 जर्नल्स के अंडर में कंसिडरेशन, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है अवेलेबल? नहीं सर, एक्चुअली दिस इज द थिंग्स रिलेटेड टू एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च. Yes, ma'am, I know that. What I am trying to say is that is there any such kind of platform available? It is multiple publication, and that is against your ethics. That no, it is not published yet, but under process. So is there any software available with these publishers who can search and look at how many journals I have in contact regarding that article? No. Okay. That is your self-consciousness, sir. Okay. You should not do that. Redundant publications system कहते हैं. Multiple publications. Okay. That is actually malpractice against the ethics. ओके, एक्चुअली मैम वो जैसा मैम भी कह रही थी कि वो ये तो 15 दिन ही कह रहे हैं। जब हम स्कोप्स में जाए, जब हम सेज में जाए, वहां तो ईयर्स लेते हैं वो, वहां तो मंथ की बात ही नहीं है, वहां दिन की बात ही नहीं, डेज की बात ही नहीं है, वो तो ईयर्स ले लेते हैं कंफर्मेशन देने के लिए कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। लेते हैं ना सर, लेते हैं ना। यस मैम। सो इतना लंबा टाइम गैप देना एक go for another journal na. You inform them that I cannot wait for such a long time. I'm sending my paper to another journal. Okay. That is very simple thing. Ma'am, one more question. Yeah. मैम अगर हमारे पेपर में फॉर एन एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट माय वन पेपर, तो उसमें मुझे 4 टाइम रिवीजन आए थे, तो उसका मतलब ये जो जितना भी रिवीजन ज्यादा आएंगे वो उसका बैड इफेक्ट आता है या ऐसा कुछ नहीं है? मैडम प्लीज पार्डन। मैंने एक पेपर मैम सबमिट किया था एक जर्नल में, तो वहां से जब फर्स्ट रिवीजन आया था तो उसमें तो वैलिड मतलब बहुत सारे सजेशन करेक्शन थे जो मैंने करके फिर से सबमिट किया था। फिर ऐसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम रिवीजन आया, फिर वो एक्सेप्ट हो गया था। लेकिन जो लास्ट का फोर्थ रिवीजन जो आया था ना, उसमें एक ही मतलब लास्ट थर्ड एंड फोर्थ जो रिवीजन थे ना, उसमें एकदम 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, लाइक यू हैव डेवलप्ड वन मेथोडोलॉजी, तो आपने क्या पैटर्न करवाया लाइक दैट। तो उसमें मुझे यस या नो में ही आंसर देना था, लेकिन वहां पे वो मेरा फोर्थ रिवीजन आ गया लाइक मेरे पेपर में। तो इज इट अ गुड थिंग और बैड? मतलब ये मेरे पेपर इट इज वेरी गुड. It is very good that you are getting the revisions because they are following strictly the peer review process. That means the quality of that journal is very high. Okay. Actually at that time I was little bit disappointed कि ये 4 टाइम में रिवीजन नहीं, इसका मतलब ये है कि they are not compromising
ओके मैम। फॉर पीयर रिव्यू। ओके आपके पेपर को तराश रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द थिंग। ओके मैम। ओके, थैंक यू। तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा? नो 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 नो, Okay. it's good. It is a very good practice actually, I would like to say. Okay ma'am. Okay, thank you. Yeah. Any more questions? No ma'am, not from my side. Ma'am, I want to ask one question. Yeah. When we create an Google Scholar account, at that time, आपने अभी बताया था कि Gmail के बाद एक ईमेल आईडी बनाना पड़ता है। हाँ. वो हमने बनाया, फिर भी हमारा अकाउंट नॉट वेरीफाइड ऐसे आ रहा है। नहीं, आप एक काम कीजिए, आपका जो वेबसाइट बना रहा है ना कॉलेज का, हाँ मैम, उससे कांटेक्ट कीजिए। अच्छा। हाँ, he will give you the proper institutional ID. अच्छा, हाँ. तो वो बहुत बार हमने ट्राई किया तो वो नॉट वेरीफाइड ही दिखा रहा है गूगल स्कॉलर। नहीं, आप उसको वेबसाइट डेवलपर को कांटेक्ट कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। वो बना के देगा बराबर से। ओके। एंड वो जो स्कोपस इंडेक्स जो है ना मैम, सॉरी, उसमें जो है हम आईडी बनाते हैं उस टाइम तो सब इंफॉर्मेशन हमें सेल्फली भरनी पड़ रही है, वो अपने आप नहीं अडॉप्ट कर ले, जैसे गूगल स्कॉलर में अपने आप पेपर आ जाते हैं। ओके, देखती हूँ। हॅलो प्रीती. हा मॅडम. अरे 3:30 वाजले. हो. तर मग काय करायचं, ओपन ऍक्सेस नंतर घ्यायचं? हो चालेल ना मॅडम, आपण आता हे 2 सेशन करून टाकूया आज उद्याचे. मग मी नेक्स्ट वीक मध्ये वगैरे आपण प्लॅन करू आहे अजून एक सेशन. चालेल ना. कारण की उद्या आयपीआर पण मोठं आहे, त्याच्यासोबत नाही होऊ शकणार ओपन ऍक्सेस. त्याच्यासोबत नाही होऊ तर शकणार. उद्या आपण आयपीआर घेऊ, पण ओपन ऍक्सेस पण यांना घ्यावं लागेल आपल्याला. तर आपण आणि ते एपीआयचं तू जे म्हणाली हा, तर ते 2 सेशन आपण नेक्स्ट वीक मध्ये प्लॅन करू, नेक्स्ट किंवा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मध्ये. पीबीएस वरती ना मी एक काम करेल, पीबीएस वरच्या सोबत प्रिडेटरी जर्नल्स पण त्यांना सांगू. चालेल ना मॅडम, चालेल, काही हरकत नाही. तर आपण उद्याचं सेशन होऊ देऊ, मग मी लास्ट 28 पर्यंत आहे मॅडम. तर आपल्याला आपण बघूया 2 सेशन मधात मिळतील एखाद 2, तर आपण मग तसं बोलूया फोनवर. चालेल. चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आई होप आप लोग इसको जरूर यूज करेंगे अपने रिसर्च को इवैल्यूएट करने के लिए। मैडम का कल भी एक सेशन है अपने साथ सेम टाइमिंग पे। मैडम के साथ कल फिर से मुलाकात होगी, बहुत अच्छा टॉपिक है कल का भी। तो आई एक्सटेंड माय थँक्स मंगला मॅडम वन्स अगेन फॉर टुडेज सेशन. उद्या भेटूया मॅडम आपण 2 वाजता. हो भेटूया. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सो मच मॅडम. थँक्यू सो मच मॅडम. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅम. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं, आज के सेशंस यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपको रिपोर्ट सबमिशन है तीनों सेशंस का। कल भी अपना सेम स्केड्यूल रहेगा 10:30 से 3:30 तक। कल भी अच्छे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पूरा रिसर्च और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लेक्चर्स रहेंगे। तो आप अभी थोड़ा रेस्ट करिए एंड देन यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। अभी हम रुकते हैं, कल मिलते हैं 10:15 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you. Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you all. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम. Thank you ma'am. थँक्यू.